اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی آن لائن اگر آپ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے پابندی سے مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ آئیے ناظرین، آج 11 جون 2022، آج کی بہت اہم خبریں پیارے ملک بھارت کی میرے نگاہوں کے سامنے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت گجرات کے سفر پر ہوں اور بذریعہ آواز آڈیو کی شکل میں ہی میں آپ کو خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ میں کہیں بھی رہوں تو صبح پہلے، سب سے پہلے میں یہ کام کرتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں سچی، اچھی، بے باک خبروں کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ چینل بے باک انداز میں خبروں کو آپ تک پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ آپ دعائیں کیجئے ہمارے لیے کہ اللہ ہماری محنتوں کو قبول کرے اور ظالموں کی بری نظروں سے اللہ بچائے، اور آپ سے اپیل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ چینل کا تعاون کریں۔ گزشتہ رات الحمدللہ گجرات کے لوناواڑا میں بعد نماز مغرب جمعہ مسجد میں زبردست پروگرام ہوا۔ آس پاس کے تمام شہرہ کے ہیں، سنترام پور کے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ بڑے بڑے علماء کرام علاقے کے اور خاص طور سے دارالعلوم لوناواڑا کے شیخ الحدیث صاحب اور تمام ذمہ داران، مفتی خالد صاحب، ایسے ہی مولانا ساجد صاحب، یہ تمام لوگ موجود رہے۔ آئیے پہلی بڑی خبر میں آپ کو اس وقت بتا دوں کہ گزشتہ کل جمعہ کے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے پیمانے پر پورے عالم اسلام میں ہندوستان کی وہ شیطان جس کو بی جے پی بڑا پیار کرتی ہے اور ابھی تک اسے جیل کے سلاخوں میں نہیں ٹھونسا ہے، نوپور شرما گستاخ رسول ملعون خبیث عورت اور نوین کمار جندال، ان دونوں کو جیل کے سلاخوں میں ٹھونسا جائے، اس کے لیے پورے عالم اسلام میں آوازیں اٹھ رہی ہے اور پورا عالم اسلام جاگا ہے۔ حالانکہ نہ موب لنچنگ پر جاگا تھا، نہ مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف جاگا تھا، لیکن شان رسالت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رتی برابر بھی گستاخی کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو گزشتہ کل جمعہ کے دن جمعۃ نصرت رسول اللہ کے نام سے ایک میسج چلا تھا اور پورے عالم میں آندولن ہوا،
इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, कतर, बांग्लादेश से मुजाहिरों की खबरें आई है और फ़लस्तीन क़िबला अव्वल में भी नमाज जुमा के बाद गुस्ताखी के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया गया। अज़रबैजान में भी हिंदुस्तानी सफ़ीर को बुलाकर फटकार लगाई गई। वहीं पर हिंदुस्तान के दिल्ली में भी ज़बरदस्त एहतजाज लोगों ने दर्ज कराया। ऐसे ही राजस्थान के भीलवाड़ा में भी ज़बरदस्त एहतजाज हुआ है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं आपको बताऊं कि मुंबई में भी, भिवंडी में भी, मुमरा में भी और अलग अलग मकामात पर, यहां तक कि हमारे जलगांव जिले में भी कई मकामात पर जबरदस्त अंदाज में लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। शान रिसालत में रत्ती बराबर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर से भी श्रीनगर में भी एहतजाज हुआ, प्रयागराज में भी एहतजाज हुआ और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे देवबंद में भी जबरदस्त एहतजाज हुआ, रांची झारखंड में भी एहतजाज हुआ और मुंबई में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। लेकिन अजीब बात है कि पूरी दुनिया में इन शैतानों के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं मगर फिर भी अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। यानी बीजेपी क्या शायद यही चाहती है कि इसी तरीके से घटिया माहौल बना रहे और मुल्क का अमन खत्म होता रहे और उसको फायदा मिले, तो ये बड़ी बुरी हरकत है। आइना जी, इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है। जहां गाजीपुर जिला के मोहम्मदाबाद में जुमा को एक बड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जब गंगा स्नान के लिए एक ही खानदान के 5 अफराद डूब गए। सिमरा घाट पर नहाने वाले एक ही खानदान के 5 अफराद गंगा में डूब गए। गांव वालों ने एक लड़की को बचाने में कामयाबी हासिल की जबकि 4 अफराद पानी में डूब गए। काफी कोशिशों के बाद गोताखोरों ने नौजवान की लाश निकाली। डूबने वाले 3 अफराद की तलाश जारी है। आइना इस वक्त बहुत बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस चीज को मैं पहले से कहते आ रहा हूं, आज हमारे अकाबिरीन, हमारे बड़े उलमा और हमारी बड़ी तंजीमें भी अब ये अपील करती हुई नजर आ रही है। आज मैं आपको बता दूं कि जैसे इससे पहले हजरत अलहाज गुलजार आजमी साहब जमीयत उलमा अरशद मदनी ने अपील किया था कि टीवी डिबेट्स में शिरकत न की जाए, आज बड़ी खबर आ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उलमा और दानिशवरों से कहा कि टीवी मुबाहिसों और डिबेट्स में शिरकत न की जाए। उसकी वजह क्या है मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि ये खबीस लोग बाकायदा कुछ मुसलमानों को इसको इस्लामिक स्कॉलर के नाम से बुलाते हैं और बाकायदा वहां पर प्री प्लान मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाते हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं कि 4-5 मौलाना नुमा लोग, मौलाना नुमा कह रहा हूं मैं, यानी ये लोग मौलाना नहीं है, ये 5-5 हजार लेते हैं डिबेट करने के और अपनी बेइज्जती तो करवाते हैं। खैर इन खबीसों की तो कोई इज्जत नहीं है लेकिन ये इस्लाम और मुसलमानों की भी बेइज्जती करवाते हैं। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस नोट में कहा है, मौलाना खालिद सैफुल रहमानी ने और सदर बोर्ड हजरत मौलाना राबे हसनी नदवी ने और नायबीन सदर बोर्ड हजरत मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब ने, हजरत मौलाना काका सईद अहमद उमरी साहब ने, मौलाना सैयद शाफकुद्दीन अशरफ साहब ने, हजरत मौलाना अरशद मदनी ने, तमाम लोगों ने ये मुश्तरका बयान जारी किया है कि टीवी चैनलों की डिबेट्स में शिरकत न करें क्योंकि गोदी चैनल पूरे सत्ता के दलाल हैं जो प्री प्लान मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया माहौल बना रहे हैं। और जब कोई आदमी सही बोलने पर भी आता है तो ये इनके एंकर और एंकराएं भौंकने लग जाती है जिससे माहौल खराब होता है। इसलिए मैं तो ये भी अपील करूंगा कि जो जो चेहरे टीवी डिबेट्स में दिखते हैं मुसलमानों को उनका फुल बायकॉट करना चाहिए क्योंकि ये खबीस, इनकी बेइज्जती नहीं, इनकी तो कोई इज्जत नहीं, ये इस्लाम को बेइज्जत कर रहे हैं। आइए बड़ी खबर आ रही है इंडियन मुजाहिदीन मुकदमा गुजरात को लेकर। आप जानते हैं कि जमीयत उलमा अरशद मदनी, अल्लाह बेहतर बदला नसीब करे, वो ये केस देख रही है, लड़ रही है और जबरदस्त अंदाज में दिफा भी करती हुई नजर आ रही है। अब खबरें आ रही है कि इस मामले में जो सजा याफ्तगान थे उनको सर्विस मुकम्मल न होने की वजह से
समाअत टल गई। अगली समाअत 28 जुलाई को होगी। फैसले की अंग्रेजी नकल हासिल करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। ऐसा अलहाज गुलजार आजमी साहब, जो जमीयत उलमा अरशद मदनी के लीगल सेल के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बात कही है। वहीं पर जमीयत उलमा को अल्लाह जज़ाए खैर दे, बेहतर बदला दे, मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जो केसेस जमीयत उलमा लड़ रही है, तो अब खबरें आ रही है कि दहशतगर्दी के इल्जामात से और 2 मुसलमान नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह बरी हुए हैं। मोहम्मद गुल नवाज और अब्दुल समद को खुसूसी NIA अदालत ने दहशतगर्दी के इल्जामात से बरी कर दिया। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, दिल्ली में तौहीन रिसालत के खिलाफ जबरदस्त अंदाज में गुज़िश्ता कल एहतजाज आंदोलन दर्ज करवाया गया। अब खबरें आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तकरीबन 33 कारकुनों को मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मोअत्तर लीडरान नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल के खिलाफ जबरदस्त अंदाज में इन लोगों ने एहतजाज किया। इसको भी लेकर और मुख्तलिफ फसादात को लेकर भी 33 MIM के जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया गया। और फिर MIM दिल्ली का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत में कानून नहीं, शाह की चलती है, यानी अमित शाह की मनमानी चल रही है, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसा MIM दिल्ली ने बयान दिया है। और उन्होंने कहा है कि गुस्ताखान रसूल आइन का मजाक उड़ा रहे हैं, कानून का मजाक उड़ा रहे हैं और आइन के पासदारों को जेल भेजा जा रहा है। नाज़रीन, ऐसी ही एक बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के रांची से आ रही है। जी हां, रांची में नौजवानों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। बड़ा अफसोसनाक अमल पुलिस की जानिब से हुआ है। अमीर शरीयत का बयान आया है कि पुलिस ने अफसोसनाक अमल पुलिस ने अंजाम दिया है। इमारत शरिया ने जख्मियों से मुलाकात के लिए इंतजामिया से राबता किया और मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने वाले वर्दी वालों पर कार्रवाई का मुतालबा किया। जुमा की नमाज के बाद झारखंड के राजधानी रांची में तौहीन रिसालत के मुजरिमीन के खिलाफ अपने दुख और तकलीफ का इजहार करने के लिए जमहूरी तरीके पर जमा हुए नौजवानों पर पुलिस ने गोलियां चलाकर बड़ी घटिया और नीच हरकत की है। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने पुलिस की इस जालिमाना कार्रवाई पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई का डिमांड किया। आइए नाज़रीन, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के इल्मी तहरीक की शहर देवबंद से भी बड़ी खबर आ रही है। यहाँ खबर आ रही है कि गुज़िश्ता कल देवबंद में भी बाद नमाज जुमा गुस्ताखाने रसूल और वो शैतान जो लगातार प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, और बीजेपी की बदमाशी है कि अभी तक उन्हें ठूसने को तैयार नहीं है जेल की सलाखों में। तो गुज़िश्ता कल देवबंद में भी जबरदस्त आंदोलन किया गया और फिर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। खबरें हैं कि एक नाबालिग समेत कई नौजवानों को हिरासत में भी लिया गया। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। सहारनपुर में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ जबरदस्त अंदाज में आंदोलन किया गया। देवबंद में मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखकर एहतजाज किया। नमाज जुमा के बाद अचानक मस्जिद रशीद के करीब कुछ नौजवानों ने बैनर पोस्टर लेकर आंदोलन शुरू कर दिया, जिन्हें पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए भगा दिया। बगैर इजाजत और बिना क़यादत के एहतजाज कर रहे निस्फ दर्जन से जायद नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रियासत मध्य प्रदेश के भोपाल से, राजधानी भोपाल से। आप जानते हैं कि भोपाल में एक ऐसी औरत है जिस पर कई बेकसूरों को बम से उड़ाने का इल्जाम है, लेकिन बीजेपी जब सर पर हाथ रखती है तो ऐसे लोग भी पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। तो आइए, खबर आ रही है MP मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर, जाना पहचाना नाम है, आप जानते होंगे, मजलूमों को उड़ाने में ये अहम मुलजिम बनी हुई है। अब खबरें आ रही है कि जिस शैतान औरत ने, नुपुर शर्मा ने, पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया का माहौल खराब किया प्यारे आका की शान में गुस्ताखी करके, अब जनाब मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर उसके सपोर्ट और हिमायत में उतर आई और कहा कि अगर सच बोलना बगावत है तो हम बागी हैं।
जी हाँ, यानी आप समझ सकते हैं कि शैतानों के सपोर्ट में भी बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट खड़े हुए हैं, और भी कुछ शैतान हैं जो ऐसे शैतानों के सपोर्ट में लगातार खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर इनको मुल्क से रत्ती बराबर भी मोहब्बत होती तो ये ईमानदारी के साथ कहते कि नौपोर शर्मा जैसी शैतानों को जेल की सलाखों में ठूंसा जाए। आइए, इस वक्त प्रियंका गांधी ने सीधा हमला किया है मोदी जी पर और भाजपा पर। जी हां, प्रियंका ने बयान दिया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर कहा है कि मोदी हुकूमत रोजगार के नाम पर नौजवानों को धोखा दे रही है। हुकूमत को चाहिए कि धोखा देना बंद करे। जी हां, आप जानते हैं कि पढ़े लिखे नौजवानों को मोदी जी ने बड़ा प्यारा मशवरा दिया था कि पकोड़े तलें। जी हां, अब लोग कहते हैं कि मोदी जी आपको शायद मालूम नहीं कि पकोड़े तलने के लिए LLB और MBA करने की जरूरत नहीं है, जैसे चाय बेचने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, मोदी जी ने हमेशा जनता को बेवकूफ बनाया, नौजवानों को धोखा दिया, लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। क्या तो वादा किया गया था भाइयों बहनों, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, नौकरियां दी नहीं गई बल्कि छीन ली गई। और जो लोग बाहर, हमारे हिंदू भाई गल्फ कंट्रीज, सऊदी कंट्रीज में, खलीजी मुल्कों में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो यहां पर बीजेपी के कुछ शैतान माहौल खराब कर रहे हैं और उसके असरात बाहर मुल्कों में रहने वाले हिंदुओं की नौकरी पर आ रहे हैं। तो हिंदू भी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि मोदी जी तुमने मुल्क में हमको नौकरी नहीं दिया, हम गल्फ कंट्रीज में यहां अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं, वहां भारत में तुम शैतानों को रोको, क्योंकि हमको यहां अरब मुल्कों में तकलीफ आ रही है। आइए नाज़रीन, बड़ी अजीबोगरीब खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने है। जी हां, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने अब यह कहा है कि पूरे मुल्क को मालूम है कि बी और सी टीम कौन है। और अजीब इस वक्त मेरी निगाहों के सामने खबर है, राज्यसभा के इंतखाबात के पस मंजर में AIMIM ने ऐलान किया है कि वो महाविकास अघाड़ी को वोट देंगी। इसके बाद बीजेपी ने MIM को महाविकास अघाड़ी की बी टीम होने का इल्जाम लगाया। शिवसेना के MLA भास्कर जाधव ने कहा कि पूरे मुल्क ने देखा है कि बीजेपी की बी टीम कौन है और सी टीम कौन है। भास्कर जाधव ने कहा कि पूरे मुल्क ने जानता है कि बीजेपी की बी टीम कौन है और सी टीम कौन है, इसलिए बीजेपी चाहे किसी के बारे में कुछ भी कहे, इनकी बातें काबिले एतबार नहीं है। वैसे बीजेपी और हमारे PMG की बातों पर अब कोई मामूली बच्चे भी यकीन करने को तैयार नहीं। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।